नमस्कार आदाब, मैं निशात और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। वेलकम टू पायल मल्टी प्लाजा तो चलिए आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर सीबीएसई बोर्ड न्यू ब्लिस हेयर स्पा एंड ब्यूटी सैलून ग्रेविटी दी सप्लीमेंट स्टोर सप्लीमेंट अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। आज ही बुक करें हयात पैलेस। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की। सुप्रीम गारमेंट अ प्रीमियम स्टोर फॉर मेंस वेयर। दुर्गापुर इलाके में एक बंद क्वार्टर में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये क्वार्टर सेनगुप्त परिवार का है जो यहाँ नहीं रहते। आज अचानक आग की खबर पाई गई। पुलिस और दमकल विभाग की सहायता से आग पर काबू पाया जा सका। এই তো ফোন ধরে না, জিজ্ঞেস করো না, ফোন ধরবেই না। আব ভাঙতে হবে, তাছাড়া কোনো উপায় নেই, ভাঙতেই হবে। আর এটা ভাঙুক ভাঙুক, ভেঙে সব যা চলেছে চলেছে। কেনা আছে বলে ফেলে রেখে গেছে এইভাবে। ভিডিও দেখছো না, পুরো অযত্নে রয়েছে জায়গাটা। ঘরে তার কিছু নাই, মানে আমরা ঘন্টাখানেক আগে থেকে দেখছি জানলা দিয়ে ধুয়ো বেরোচ্ছে, আর পেছন দিকের একটা দেওয়াল পুরো কাটা। এবার কিসে আগুন লেগেছে না গেছে, ফায়ার ব্রিগেড যতক্ষণ না কাজ করে বেরোচ্ছে ততক্ষণ হয়ে যাবে না। ইলেকট্রিক সার্কিট না গ্যাস না অন্য কিছু, এবার ফায়ার বেরোলেই বোঝা যাবে। পিছন দিকে কাটা আছে দেখলাম, পেছন দিকে অনেকটা কাটা আছে। এটা কোথাও চুরি ফুরি হয়েছে? চুরি হতে পারে, এটা দিন 10-এর মধ্যে যা হওয়ার হয়েছে। ভেতরে কি কেউ ছিল না, কোনো লোক নেই। কোনো লোকই 4 বছর ধরে কেউ নেই। 4 বছর হয়ে গেল, কোনো লোক নেই, এবং তার সঙ্গে কোনো কন্ট্যাক্ট নেই কারো। ওপর বাড়ি, আমার বাড়ি, এর বাড়ি, কারো বাড়ি যোগাযোগ নেই। ঘরটা পুরো জঙ্গল হয়ে আছে। কি নাম ভদ্রলোকের, কি নাম যার বাড়ি? সেনগুপ্ত টাইটেল। ভদ্রমহিলার নাম হচ্ছে রুক্মিণী সেনগুপ্ত, না জিপি মানে গুরুপদ, আর ভদ্রলোকের নাম গুরুপদ সেনগুপ্ত। ওরা দুজনেই কলকাতায় আছে না বেনারসে আছে জানি না। আর উপরতলা কি, উপরতলা বাড়ি থাকে? বাবু কর্মকার থাকে, ওর সঙ্গে এখনই ফোনে কন্ট্যাক্ট হলো, বললো পলদা আমার ঘর চেক করা হলে তুমি তালা ভেঙে দিও। ও প্রতিবার চাবি দিয়ে যায়, এইবারই ওর চাবিটা নিয়ে বেরিয়ে গেছে। ওর চাবি আমাদের কাছে দেখো বছরে 4-5 বার আসে, পুজোতে আসে, গরমের ছুটিতে আসে। আপনার নাম? আমার নাম সুমন্ত ঘোষাল। আপনি এখানেই থাকেন? পাশের বাড়ি 122। কি শুনলেন, কি দেখলেন? কি দেখলেন এসে? প্রথমে ধোঁয়া দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দেখে প্রথমে ধোঁয়া হচ্ছে গ্যাস এখানে, এবং দীর্ঘদিন ধরে যার কোয়ার্টার তাকে এখানে দেখা যাচ্ছে না, বহুদিন ধরে নেই। দু ছেলে দুজনেই বাইরে চাকরি করে। ভদ্রলোকের কোয়ার্টারটি হচ্ছে ডিএসপির কাছ থেকে নেয়া। ভদ্রলোকের এসপি সেনগুপ্ত ভদ্রলোকের নাম,
তিনি দীর্ঘদিন ধরে কোয়ার্টারে নেই। হঠাৎ এখানে আগুন লেগে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে সবাই আতঙ্কিত হয়ে যায় এবং আমরা স্থানীয় সঙ্গে সঙ্গে আমরা দমকলে খবর দিই, পুলিশ এসে যায় এবং এখনও আমরা আতঙ্কিত। সিলিন্ডার যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে, যদি সিলিন্ডার থাকে গোটা বিল্ডিংটা যে কোনো সময় এখানে ক্র্যাক করে যেতে পারে, এখানেতে বড় রকমের দুর্ঘটনা করতে পারে। যাই হোক, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এবং দমকল এসে উদ্ধার কার্যে লেগে গেছে এবং ঘরের ভেতরে ঢুকে গেছে তারা। এই অবস্থার মধ্যে আগুন নেভানোর পথে তারা সচেষ্ট হয়েছে। এই ব্যাপারে যে স্থানীয় লোকেরাও সমানভাবে আসছেন এবং আপনারা সবাই মিলে আসে যাওয়ার জন্য একটা সহযোগিতা সংঘবদ্ধভাবে এই আগুনটা নেভানো। বলছিলাম পিছনে দেখলাম যে কাটা আছে, তার মানে কি কোনো চুরি পুরিও কোনো চক্রান্ত? আমি এখানে লোকাল আজকে যেটা বলছি যে আগেতে হয়তো চুরি হতে পারে, কিন্তু ভদ্রলোক না বলা পর্যন্ত বলা যাবে না। ভদ্রলোক দীর্ঘদিন ধরে নেই, দু ছেলেই বাইরে চাকরি করে এবং অনেক দিন ধরে ভদ্রলোক নেই, তার ফলে কোয়ার্টারটা অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। আপনার নাম? আমার নাম শৈবাল রায়, এই 6 নম্বরেরই বাসিন্দা। पश्चिम बंग आदिवासी कोड़ा समाज की तरफ से आज एक रैली निकाली गई। ये रैली बीएनआर से डीएम ऑफिस तक गई और जिला नाजिम को अर्जदास सौंपा गया। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কোড়া সমাজ কল্যাণ সংগঠনের সংগ্রাম চলছে চলবে। পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কোড়া সমাজ কল্যাণ সংগঠনের সংগ্রাম চলছে চলবে। আদিবাসীদের জমি ও আদিবাসীদের নামে রেকর্ডভুক্ত হচ্ছে কেন, প্রশাসন জবাব দাও। এদিকে এদিকে আদিবাসীদের জমি লুট হচ্ছে কেন, প্রশাসন জবাব দাও। আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হতে দিচ্ছি না, দেব না। এই জল জঙ্গল জমির অধিকার দিতে হবে। এই জমি আত্মসাতের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। এই জমি আত্মসাতের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে। এই জোরপূর্বক আদিবাসীদের জমি ছিনিয়ে নেওয়া যায় না, যাবে না। এই জোরপূর্বক আদিবাসীদের জমি ছিনিয়ে নেওয়া যায় না, যাবে না। আদিবাসীদের জমি আদিবাসীদের জমি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কোড়া সমাজ কল্যাণ সংগঠনের সংগ্রাম চলছে চলবে। চলে যায়। আজকে কি বিষয় নিয়ে আপনাদের এই র্যালি? আজকে আমাদের যে বেআইনিভাবে আমাদের আদিবাসীদের জমি ও আদিবাসীদের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়ে যাচ্ছে, এছাড়াও আমাদের আদিবাসীদের ন্যায্য দলিল আছে, সেই দলিল দেখা সত্ত্বেও কিন্তু আদিবাসীদের নামে মিউটেশন করা হচ্ছে না, তাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। এই প্রতিবাদেই কিন্তু আমাদের আজকে এই ডেপুটেশন হচ্ছে। তো কোথায় ডেপুটেশন দেবেন? ডেপুটেশন হচ্ছে আপনার আসানসোল ইউপি পিএলআরের কাছে এবং এডিএম ডিএলএর এসডিএলের কাছে। কাদের উদ্যোগে হচ্ছে এটা বলুন? কারা করছেন এটা? মানে এটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কোড়া সমাজ কল্যাণ সংগঠনের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে ডেপুটেশনটা। আচ্ছা, কোথা থেকে সবাই এসছে? সব পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছে। বিভিন্ন প্রান্ত, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় সাধারণত যেহেতু এই বিষয়টা রয়েছে, তাই পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের কর্মী সমর্থকরা এসে উপস্থিত হয়েছে। আপনার নাম বলুন? আমার নাম সুকুমার কোড়া। के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है।
इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा के 3rd फ्लोर में खुल चुका है न्यू ब्लिस हेयर स्पा एंड ब्यूटी सैलून फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इसके साथ ही जीरो ग्रेविटी दी सप्लीमेंट स्टोर, सप्लीमेंट का एक ऐसा स्टोर जहां अवेलेबल है नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड के ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, जीरो ग्रेविटी जिम के ट्रेनर्स आपको देंगे सजेशंस कि कौन सा प्रोडक्ट होगा आपके लिए बेस्ट। वहीं हेयर और स्किन का ख्याल रखना हो तो चले आइए न्यू ब्लिस, जहां प्रीमियम ब्रांड्स के साथ अवेलेबल है एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स जो आपकी ब्यूटी को निखारने में करेंगे आपकी मदद। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, 3rd फ्लोर, आसनसोल। यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। अगर आप हैं परेशान अपने बच्चे का फ्यूचर लेकर और कराना चाहते हैं उनका एडमिशन एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो चले आइए स्कूल ऑफ कंपटीशन अंडर CBSE बोर्ड। कंप्यूटर, लाइब्रेरी, ऑडियो विजुअल, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के अलावा और भी कई सारी को करिकुलर एक्टिविटीज, साथ ही एक्सपीरियंस्ड एंड एडुकेटेड टीचर्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जैसी कई सुविधाएं। हमारे यहाँ एडमिशन अभी चल रहा है, तो आज ही आए स्कूल ऑफ कंपटीशन। हमारा एड्रेस है कालाझरिया रोड, सेंट्रल पार्क, बर्नपुर। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। सुप्रीम गारमेंट, अ प्रीमियम स्टोर फॉर मेंस वेयर, कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ मिलेगा अब एक छत के नीचे। तो अपने लुक में लाना हो थोड़ा रिफ्रेशमेंट या फिर अपने वार्डरोब को करना हो अपग्रेड, सुप्रीम गारमेंट के मेंस कलेक्शन होंगे आपके लिए राइट चॉइस। जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर, सूट्स के एक से बढ़कर एक कलेक्शन जो है स्टाइलिश, अफोर्डेबल और बहुत ही कंफर्टेबल। शॉपिंग करने के लिए फटाफट नोट करें सुप्रीम गारमेंट का एड्रेस। हमारा एड्रेस है TP मार्केट नियर टेक्नो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। शादी ब्याह हो या पार्टी, अपने फंक्शन को यादगार बनाने के लिए आज ही बुक करें हयात पैलेस। खूबसूरत हॉल, रूम्स, 24 आवर्स पावर बैकअप, ड्रिंकिंग वाटर, पार्किंग, किचन, CCTV, चेयर टेबल जैसी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं। तो आज ही राब्ता करें। हमारा पता है आज़ाद नगर, बर्नपुर, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9832213829 पर। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. With a spacious underground and open multi-level parking facility, we are home to the most affordable fashion brand stores, which offers apparels for all sizes and age groups. At Payal Fresh, we get all your grocery requirements covered. And for your hunger, we have multiple mouth-watering food stalls. So what's stopping you? Visit us today at Payal Multi Plaza near Asansol Railway Station. আপনার বাড়িতে বিয়ে আছে
বা আপনি নতুন বাড়ি কিনছেন, তাই চাই দারুণ দারুণ ফার্নিচার, তাও আবার কম খরচে। কম খরচে বেস্ট ফার্নিচার মানে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। Furniture World, a real world of exclusive furniture store. Almira, dining table, center table, dressing table, luxurious sofa, sofa set, बेड, wardrobe के बेहतरीन कलेक्शंस खरीदे 20% की धमाका छूट के साथ है फाइनेंस फैसिलिटी इजी EMI के साथ। एक बार जरूर आए फर्नीचर वर्ल्ड, GT रोड शनि मंदिर के विपरीत नुरुद्दीन रोड आसनसोल। আপনার আমার সবার বিশ্বস্ত ফার্নিচার শোরুম ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। कि आप और मैं पल्ले पड़े बोले ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा फिर एक बात समझ लो भाई, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कोई कर रहा है। जरा बजट तो एक बार जरा मिलके तालियां बजट थोड़ा लगेगा, कभी समय ना हो रहा। बहुत अच्छे, सच बता रहा हूँ सर, पत्नियों में कुंठित होता है। हाँ, जिनकी अपनी पत्नी से अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग के मामले में मैं और मेरी पत्नी लाजवाब। क्या अंडरस्टैंडिंग है सर हमारी। 27 साल हो गए शादी को, लेकिन 27 साल की शादी की जिंदगी में उसने मुझसे कभी गंवार, मूर्ख, बेवकूफ, नालायक, पाजी, गधा, इसमें के किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। कारण अंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की है, इतनी कमाल की है कि बस वो नजर भर देखती है और मैं समझ जाता हूं वो इनमें से क्या कह रही है। ये अंडरस्टैंडिंग है सर, ये कमाल है। एक दिन सर आ गई मेरे, बोले देखो टीवी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले फिल्म आ रही है शराबी अमिताभ बच्चन की। पूरी फिल्म में पट्टे ने एक बूंद शराब की नहीं पी, लेकिन जो एक्टिंग की है वो कितनी कमाल की है। मैंने कहा मूर्ख औरत, उससे बड़ा एक्टर में। बोली कैसे? मैंने कहा पिछले 27 बरस से रोजाना पीने के बाद जो नहीं पीने की एक्टिंग मैं जिंदाबाद वो तुझे क्यों समझ में नहीं आती। और सच बात तो यह है साहब कि मुझे तो जब पत्नी शब्द सुनता हूं ना तो पूरे शरीर में झुरझुरी होती है, कप कपी छूटती है, ऊपर से नीचे तक सनसनी होती है। मुझे 27 बरस पहले का वो दृश्य याद आता है जब 7 फेरों के वक्त पंडित जी ने कहा बेटा ये सिंदूर की डिब्बी लो, इसे खोलो और इसकी मांग भरो। चिराग भाई, आज जब वो दृश्य कल्पना में आता है ना तो ऐसा लगता है भगवान कसम कि वो मांग नहीं थी, वो दरअसल नक्सलियों की एक सुरंग थी। ताली तो पूरा सदन इस बात पे बजाना कि सुरंग भी वो वाली थी जिसमें मैंने अपने हाथों से बारूद बिछाई है। सच बता। और ऐसा नहीं था कि मैंने उसे छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की ना, मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा क्या आइटम छुपाया है? जिंदगी दुश्वार करके रख दी, परेशान करके रख दिया, न जीने में न मरने में। भगवान कसम उन्होंने मेरी सारी बात सुनी, फिर मुझे कोने में ले गए और कोने में ले जाने के बाद जो उन्होंने एक पंक्ति बोली, उसे सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख, दर्द, तकलीफ, कष्ट, वेदना, यातना सब भूल गया और मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। वो मुझे कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है। सही बात अच्छे गोविंद जी। यार ताली एक बार मिलके बजाओ यार जरा। कहोना क्या तब होगा, ढल जाए रूप बदन पर रोए सिंगार, कहोना क्या तब होगा प्यार। एक दृश्य रख रही हूँ, अपने जीवन में ये दृश्य हर एक महिला जीती है। सुनिए, करोगे क्या तब मुझसे प्यार, झुर्री वाला चांद, झुर्री वाला चांद नहीं जब दर्पण को भाएगा, नैनों के बदले नैनों से चश्मा टकराएगा। क्या बात है। झुर्री वाला चांद नहीं जब दर्पण को भाएगा, नैनों के बदले नैनों से चश्मा टकराएगा। फिल्मी गीतों की धुन पर मैं गाऊंगी चौपाई,
प्यार। उम्र से बड़ा सच नहीं है, सुनिए। बेशक। जब बालों से झांकेगा थोड़ा थोड़ा उजियारा, हाय हाय। आंखों की झाई से हारेगा काजल बेचारा, झीने झीने सुर में थक कर जब कोयल गाएगी, धर कर हाथ कमर पर कोई नदिया सुस्ताएगी, एल्बम बनकर रह जाएगा, एल्बम बनकर रह जाएगा, यादों का संसार, कहो ना क्या तब होगा प्यार, ढल जाए ये रूप बदन पर रोए ये सिंगार, कहो ना क्या तब होगा प्यार। आखिरी बंद पढ़ रही हूँ। बोले लेने तो मैं शपथ आया था पर तू जल्दी नहीं ले। अच्छा आप देखो पिछले 10 साल से भाई साहब, कोई टीवी चैनल खोल लो उस पे मोदी जी, किसी भाषा का चैनल खोल लो उस पे मोदी जी। मैंने कसम खाई, मैंने कहा मैं एक ऐसा चैनल देखना शुरू करूंगा जिस पर भाई साहब कभी नहीं आ सकते। मैंने डिस्कवरी देखना शुरू की। बहुत अच्छे। उनने वो भी नहीं छोड़ा। डिस्कवरी पर वो एक जंगली सा आदमी, बेयर ग्रिल्स, जानवरों को इंटरव्यू लेता है भाई साहब को। उसने मोदी जी से पूछा, बोले मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे? फिर से बताना कहाँ कहाँ बैठा है लोकतंत्र। बोले मोदी जी जंगल में शेर आ गया तो आप क्या करोगे? मोदी जी बोले करना क्या है, मैं शेर से कहूंगा ये पंजे उठा उठा के मत दहाड़, माँ का दूध पिया है तो ईवीएम से चुनाव जीत के दिखा। राजनीति तो ठीक चल रही। अच्छा एक और पार्टी है, बीच इलेक्शन में कांग्रेस ने नई महासचिव लॉन्च की और फिर बयान दिया प्रियंका गांधी हमारा तुरुप का इक्का है। मैंने कहा फिर अब तक क्यों जोकर से खेल रहे थे? तो राजनीति अपनी स्थिति में कुछ भी करती रहे, अगर हमारी जनता को बोलना आता हो तो चाहे कोई राजनीति उसे सुनना पड़ेगा। हम लोगों ने बोलना बंद कर दिया, इसलिए राजनीति ने सुनना बंद कर दिया। जनता बोलना सीख जाए तो दुनिया की कोई राजनीति ऐसी नहीं है जिसे नहीं सुनना आता हो। बस आप लोग थोड़े मुखर रहिए, थोड़े बोलते रहिए, अपने उत्सव मनाते रहिए। राजनीतियां आएंगी और चली जाएंगी, आपके उत्सव, आपके संस्कार और आपके परिवार ये आपके पास बच जाएगा। एक कविता विशेष आपको सुनाता हूँ। उस कविता का ये योगदान है मेरे जीवन में कि उसने मुझे एक हास्य कवि के रूप में प्रतिष्ठापित किया। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है, ये थोड़ी बहुत चहल पहल है, इसको रोक लो। जिसमें भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल देवी देवता सब नाचिए, सारे नाचे। बहुत दिक्कतें रही थी थोड़ी देर। अच्छा कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या रही, सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम। बताओ हम कैसे करें? तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम के औपचारिकता। अच्छा मेरी इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा वो एक लॉकडाउन की समस्या भी बड़ी भयंकर आई थी। 3 महीने पहले पड़ा, 3 महीने बाद में लॉकडाउन हुआ। वो सबसे बुरा समय था, बाहर कहीं आप जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो गया। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लगेगा, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। बहुत अच्छे भाई साहब। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। हाय हाय, इसको परिवर्तन जीवन। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया।
हाँ, मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद है, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल लग रही हूँ, इसलिए मुझे बंद नहीं अच्छा सर, एक कविता कोरोना काल से संबंधित और सुनाता हूँ, फिर हरियाणा का आएंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।